Only God's love can able to transform your heart. Only God's love can able to bring healing into your heart. Why He gave His Son? Because He was angry with humanity. No, God was in love. That's why He gave His only begotten Son. But I want to tell you, God was not angry, but He was in love. Every one of you in this world is very important. He so loved the world, He gave His only begotten Son. You see, He's not giving things. Giving things is easy. But He gave His only begotten Son. Why He gave His Son? He is in so much of love with you. God has decided He is not going to live without you. He wants to live with you. Okay, are you ready for God's word? क्या आप तैयार हो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? How many of you excited about God's word? कितने लोग एक्साइटेड है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? And I want to tell you, you have no idea how much I love God's word. आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं कितना परमेश्वर के वचन को प्रेम करता हूँ. I'm passionate about teaching God's और word. परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए मैं बहुत चाहत रखता हूँ. My whole life is dedicated for teaching God's word. और जो है परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए मेरा पूरा जीवन जो मैंने अर्पित कर चुका हूँ. You have no idea, how much I love God's word. आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं परमेश्वर के वचन को कितना प्रेम करता हूँ. Hallelujah. Hallelujah. So are you ready now? क्या सभी लोग तैयार हो अभी? Everyone sit straight. Turn your Bible to book of Ephesians. इफिसी की किताब की ओर देखेंगे. Ephesians chapter 3. इफिसी की किताब 3 अध्याय. First we'll quickly read 3 different passages in the Bible. हम अलग-अलग 3 भाग को जो है हम बाइबल में देखेंगे. Then I will keep that verse as a base. और वो बेस में जो है हम I बुनियादी will तौर पे keep that verse as a base. और वो वचन को जो हम बेस बुनियादी तौर पे रखेंगे. And I'll develop my teaching. और जो है उसमें से मैं आपको सिखाऊंगा. And what I'm going to teach is not going to be new. देखो जो मैं सिखा रहा हूँ वो कुछ नया नहीं होगा. If you are expecting something new to listen, you'll be disappointed. देखो अगर तुम नए हो, अगर आप कुछ नया सुनने के लिए आप आए हो तो आप थोड़ा निराश हो सकते I हो. want to teach the same thing again and again until everybody get this message. देखो ये जो संदेश है मैं लगातार दोहराते दोहराते रहूंगा जब तक लोग उस मैसेज में घुस ना जाएं. Ephesians chapter 3 इफिसी की किताब 3 अध्याय verse 18 onwards. 18 नंबर का वचन. May be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height. सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितना है. And to know the love of Christ which is passeth knowledge, that you might be filled with all fullness of God. और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ. You see here what Bible tells us. देखो आप यहाँ पे बाइबल क्या कहता है. Here Bible tells us ये बाइबल ये कहता है we should learn to comprehend the length and the breadth and the heights and the depths of God's love. हमें जो है वो सारी भली बातें समझना जरूरी है. उनकी चौड़ाई, उनकी लंबाई, उनकी ऊंचाई, उनकी गहराई, उनके प्रेम की सारी बातें. You understand? आपको समझ में आ रहा है. Bible tells us बाइबल कहता है the length, जो चौड़ाई, the breadth, उसका जो है लंबाई and the depth और जो गहराई and the heights. और उनका ऊंचाई. You should able to comprehend Bible tells और us. उसके बारे में आपको जानना है करके बाइबल कहता है. In a simple way, I have to tell you, you have to dedicate your life to understand the love of Christ for you. सरल अगर शब्द में कहा जाए तो आपके जीवन को पूरी तरह परमेश्वर के लिए समर्पित कर देना चाहिए. You should dedicate your life to understand the love of और Christ. परमेश्वर के पिता के प्रेम को समझने के लिए आपका पूरा जीवन पूरी तरह से अर्पण कर देना चाहिए. You should become expert in understanding the love of और Christ. परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए आपको एक्सपर्ट होना चाहिए. Hallelujah. हालेलुया. So Bible tells us तो बाइबल ये कहता है we should learn to comprehend the length and the breadth and the heights तो of हमें जो God's है love for us. हमें जो है परमेश्वर की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई जो है हमें जानना जरूरी है. अगर God's love is so awesome. देखो परमेश्वर का प्रेम जो है वो बहुत अच्छा है. God's love is so breadth is there, no matter how far you are in your weakness, it can reach you. देखो परमेश्वर का जो प्रेम है आप कितना भी दूर होने दो आपके पास उनका प्रेम पहुंच जाएगा. No matter how worst sinner, God's love is so lengthy it can able to reach you. देखो कितने बड़े पापी भी होने दो, आप कितने बड़े भी पापी होने दो, परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि वो वहां तक भी चला जाएगा. You may be the worst person in the world. अभी संसार के सबसे बुरे इंसान भी होने दो. You may be the low level kind of person. और आप बड़े ही तुच्छ
लेवल के भी इंसान होने दो, but God's love can able to reach you. लेकिन परमेश्वर का प्रेम आप तक पहुंच सकता है। Whatever your position may be, but God's love can able to reach you. आपका स्तर कैसा भी होने दो, परमेश्वर का प्रेम में इतनी क्षमता है कि वो कहीं पर भी पहुंच जाएगा। God's love covers all dimensions. देखो हर एक जो स्थान ये है परमेश्वर उसे ढांप लेते हैं। It covers length, breadth, depth and heights. It उस- covers वो- all dimension. वो जो है लंबाई, चौड़ाई, गहराई, हर एक स्तर को वो घेर लेता है। You know, in Christian world, you know what is the problem? देखो मसीह जीवन में पता है क्या समस्या है Among the Christians, हमारे मसीह लोग में? God loves you is a very favorite dialogue. देखो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, ये प्रसिद्ध डायलॉग हो गया है। Everybody knows that. देखो हर एक लोग जानते हैं ये बात। But hardly people really understand and experience it. लेकिन कम से कम उस बात को जान पाते हैं कुछ लोग और उस बात को समझ पाते हैं। I have dedicated my life to preach the unconditional love of देखो God. मैंने अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया हूँ परमेश्वर के प्रेम को, सीमित प्रेम को बताने के लिए। I strongly believe if at all one thing can able to bring change in my nation, it's the love of God. देखो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर इस संसार में कुछ बदलाव आ सकता है तो वो बदलाव जो परमेश्वर के प्रेम को बताने से ही होगा। Hallelujah. हालेलुया। Only one thing can bring a change in this world. सिर्फ एक ही Only एक one चीज thing इस can bring a संसार change को in this बदल सकता है। Only God's love can able to transform your heart. सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्रेम ही आपके जीवन, आपके हृदय को परिवर्तन करेगा। Only God's love can able to bring healing into your heart. सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्रेम ही आपके हृदय को चंगा करेगा। When I say healing, I'm not talking about physical healing. देखो अगर मैं जब कहता हूँ चंगाई के बारे में तो शारीरिक चंगाई के बारे में आप ना सोचें। Yeah, God's love can heal your heart, physical heart also. हाँ, शारीरिक तौर पे परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय को भी चंगा करेगा। But you know, our heart has to be healed from so many other things. लेकिन परमेश्वर अभी तक जो है हमारा हृदय जो है बहुत सारी चीजों से चंगा नहीं हुआ है। Many people are broken inside. अंदर ही अंदर बहुत सारे लोग टूटे हुए Only हैं। God's love can bring healing into your सिर्फ broken और hearts. सिर्फ परमेश्वर का प्रेम ही जो है लोगों का जो हृदय टूटा हुआ है उसे चंगा दे सकता है। There are many people are full of hatred. देखो बहुत सारे लोग जो नफरतों से भरे हुए हैं। You know, north people hate south people and south people hate. You know, north people. जो नॉर्थ के लोग हैं वो साउथ के लोगों से नफरत करते हैं, साउथ के लोग जो है वो नॉर्थ के लोगों से नफरत करते हैं। High caste people hate low caste people. जो उच्च स्तर के लोग हैं वो नीचे के स्तर के लोगों को नफरत करते हैं। Our heart in this nation is full of violence. तो हमारा हृदय पूरा राष्ट्र जो है पूरी तरह से वायलेंस से भरा हुआ है। Our heart is full of violence. हमारा हृदय पूरी तरह से वायलेंस से भरा है। We save cow and beat man for cow. हम जो है गाय को बचाते हैं और मनुष्य को मारते हैं। Utter nonsense, I'm telling you, utter nonsense. सबसे बकवास है, मैं कहना चाहता हूँ बकवास है ये। For cow, they are beating human being like a dog. देखो ये गाय के लिए मनुष्य को कुत्ते की तरह मारा जा रहा है। I love animals. देखो मैं जो है जानवरों से प्रेम करता हूँ। As much as possible in my childhood, I had all kinds of animals. जितना हो Whatever is सके possible, I had it. जितना हो सके उतना जो है जो भी जानवर थे वो सारे जानवरों को मैं बचपन में पाल चुका हूँ। You know, it will be like a season in our life. You know, we are very interested. Sometimes fish, देखो एक- sometimes dog, sometimes chicken. You know, all these things. तो ये एक मौसम की तरह होता है, एक दिन कभी मच्छी को पाल लिया, एक दिन कुत्ते को पाल दिया, एक दिन जो है कुछ भी जो भी जानवर मिलते हैं एक मौसम में हम पालते थे। I love animals. देखो मैं जानवरों से प्रेम करता हूँ। But more than animals, I love people. देख लेकिन जानवरों से ज्यादा मैं मनुष्य से प्रेम करता हूँ। But there are people love animals, they don't love people. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जानवरों से प्रेम करते हैं लेकिन मनुष्य को नहीं करते हैं। They will give food for the dog which is in the street, but they will not give food for their husband. वो लोग जो है कुत्ता जो रास्ते में है उसे खाना देंगे लेकिन घर में जो पति है उसे वो खाना नहीं देती। My God, compassion should start in your house. देखो तरस या परोसना जो होता है वो घर से शुरू होना चाहिए। They will not give food to the mother-in-law, they will give food to every animal in the road. देखो वो जो है अपने सास को खाना नहीं देंगे, जो रास्ते में कुत्ता पड़ा है उसको वो लेके के खाना देती है। We also distribute food in our place for dogs. देखो हम भी हमारी जगह में कुत्ते हैं, हम उनको खाना देते हैं। Really, I'm preparing 5 kg देखो मैं सच कहता हूँ, मैं 5 किलो सब खाना बनाता हूँ। chicken rice for the dogs. मुर्गी का जो चावल होता है चिकन राइस वो कुत्तों के लिए मैं बनाता हूँ। But you know, more than feeding dogs, I love feeding people. लेकिन कुत्तों को परोसने से ज्यादा मैं मनुष्य को, लोगों को परसता हूँ। In my hand, I cook for hundreds and hundreds of people. देखो all ये these years. हाथों से मैं 100 लोगों के लिए मैं खाना बनाता हूँ। I used to serve people through two ways. देखो मैं लोगों को 2 तरीके से उनको सेवा करता हूँ। Right now, I'm serving you through
preaching the word. अब इस वक्त मैं आपको जो है परमेश्वर का वचन को सिखाते हुए मैं आपको सेवा कर रहा हूँ। Apart from the pulpit, I used to cook food for people. और पुलपिट के अलावा मैं लोगों को खाना बना के परोस कर सेवा करता हूँ। Hundreds of poor people. 100 से ज्यादा जो है गरीब लोग, In my own hand, I cook. अपने खुद के हाथों से मैं खाना बनाता हूँ। And not for poor people, cheap food. Best food as possible. देखो, गरीब लोगों के लिए बहुत चीप खाना नहीं, लेकिन उनके लिए बहुत उत्तम सर्वोत्तम खाना बना के खिलाता हूँ। You see, in this world full of violence. देखो, ये संसार जो है पूरी तरह से वायलेंस से भरा हुआ है। They're beating all the low caste people. और जो है जो लोग का खास के जो लोग हैं उन्हें वो मारते हैं। They're beating some people based on language. और जो है उनके भाषाओं की वजह से लोग उन्हें मारते हैं। They call us, kala log. और वो लोग हमें काला इंसान कहते हैं। But I'm a blessing to this nation. लेकिन मैं इस राष्ट्र के लिए आशीर्वादित हूँ। I'm telling you. मैं सच कहता हूँ, I'm a blessing to this nation. इस राष्ट्र के लिए मैं आशीषित हूँ। I look black, but I'm blessed. मैं काला दिखता हूँ लेकिन मैं बहुत आशीषित हूँ। You have no idea how much personally I'm blessed. देखो, आप कल्पना भी नहीं कर सकते व्यक्तिगत रूप से मैं कितना आशीषित हूँ। I'm black, but I'm blessed. मैं काला हूँ लेकिन बहुत आशीषित हूँ। North people call, South people kala log. नॉर्थ के जो लोग होते हैं वो साउथ के लोगों को काला लोग कहते हैं। Violence हिंसा, based on color. कलर के लिए हिंसा। I love everyone. देखो, मैं सबको प्रेम करता हूँ। I love kala log, I love brown, all color. Even if you are मैं in green काला color, I लोगों से love. भी प्रेम करता हूँ, ब्राउन लोगों से भी प्रेम करता हूँ, सबसे प्रेम करता See, हूँ। if I love Chintu, then you understand. देखो, अगर मैं चिंटू से प्रेम करता हूँ तो आप समझ जाओ मैं कितना सबसे प्रेम करता हूँ। Violence. हिंसा, Only God's love can heal our heart from violence. सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्रेम ही हमारे हृदय को जो है हिंसा से बचा सकता है। If somebody hate me, I am not going to respond with them in violence. देखो, अगर कोई मुझसे नफरत करते हैं तो मैं हिंसा से उनका बदला नहीं लूंगा, I want to, reach them by the love of God. लेकिन मैं जो है उन तक जो है परमेश्वर के प्रेम के जरिए पहुंचूंगा। Hatred, violence, unforgiveness. नफरतें, हिंसा, माफीहीन, Only God's love can able to heal our heart. सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्रेम ही वो हृदय को चंगा कर सकता है। So I dedicated myself to preach the unconditional love of God. इसीलिए मैं अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ केवल परमेश्वर के प्रेम को सिखाने के लिए, दिखाने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. I dedicated my life for it. मेरा जीवन मैं उसके लिए अर्पित कर चुका हूँ। Sometimes some people may think, कभी कभी कुछ लोग सोचते होंगे, if you keep on preaching about the love of God, pastor, people will take advantage of it. देखो पास्टर, अगर तुम लगातार जो है परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखाते रहोगे तो आपका वो फायदा उठाएंगे। But I want to tell you, my problem, my concern is people are not taking advantage of God's love. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मेरा समस्या ये है कि अभी तक परमेश्वर के प्रेम को अभी तक लोगों ने फायदा क्यों नहीं उठाया? You understand? आपको समझ में आ रहा है? God's love is there for you to take advantage. देखो, परमेश्वर का प्रेम आपके लिए उपलब्ध है, आप उसका फायदा उठाइए। God loves you with the fullest. परमेश्वर जो है आपको परिपूर्णता से प्रेम करते हैं। And I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, never underestimate the power of God's love. परमेश्वर के प्रेम को आप तुच्छ ना समझो। People will never sin because we are preaching God's love. देखो, पर लोग जो है पाप कभी नहीं करेंगे जब हम परमेश्वर के प्रेम को सिखाएंगे। No, no. ஆண்டவரோட அன்பை பத்தி பேசுறதுனால ஜனங்க பாவம் செய்யறாங்கன்னு என்னைக்குமே आप நினைக்காதீங்க. ऐसा मत सोचना परमेश्वर के प्रेम को सिखाने की वजह से लोग पाप कर रहे करके। No, the reason they are sinning till now, they have not experienced the love of नहीं God. नहीं, कारण ये है लोग पाप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अभी तक परमेश्वर के प्रेम को समझे नहीं। They have not experienced the love of अभी God. तक परमेश्वर के प्रेम को वो अनुभव नहीं किए। If they only understand and experience the love of God, सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे और अनुभव करेंगे our life will be transformed. तो हमारा जीवन जो है परिवर्तन हो जाएगा। I have dedicated my life to experience the love of God. और मैं अपनी जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर चुका हूँ परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने के लिए। You cannot give it to others what you don't have. जो आपके पास नहीं है वो दूसरों को आप दे नहीं पाओगे। If you are full of God's love, जब आप परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्णता से भरे होंगे it will start to overflow. और वो भर कर
और उमड़ने लगेगा। You understand? आपको समझ में आ And रहा I है? believe this world will transform. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये पूरा संसार जो है बदल I जाएगा। believe God will raise many preachers like me. और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे से बहुत सारे प्रचार लोग परमेश्वर उभारेंगे। There are already lot of preachers are और there, पहले से बहुत सारे प्रचारक लोग हैं। but He will raise more in coming days. लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर और बहुत सारे लोगों को उभारेंगे। Not only need to preach, you have to practice love. नहीं प्रचार करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर Not के only preaching. हाँ? வெறும் preach பண்றது மட்டும் இல்ல. केवल प्रचार ही नहीं, You have to practice love. वो प्रेम को भी आपको जो है प्रशिक्षण करनी है। God will raise people like Mother Teresa, I और believe. मदर टेरेसा के जैसे लोगों को परमेश्वर उभारेंगे। I want to tell you, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, you may have a desire to become like a Mother Teresa, आपको इच्छा होगी शायद एक मैं मदर टेरेसा बनूं करके, but it is not that easy. लेकिन वो इतना आसान नहीं है। Just because you are giving bath to one poor beggar, you will not become a Mother Teresa. सिर्फ और सिर्फ एक भिखारी को आप निलाने से आप मदर टेरेसा नहीं बन जाओगे। First of all, Mother Teresa experienced the God's love in her life. सबसे पहली बात जो है मदर टेरेसा ने परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किए। That's why she was able to sacrifice her whole life. इसीलिए वो अपने जीवन का पूरी तरह से सैक्रिफाइस कर चुकी थी। This kind of compassion you cannot copy from और others. वो जो प्रेम तरस है वो दूसरे से आप नकल नहीं कर सकते। You understand? आपको समझ में आ So रहा I है? want to tell you, तो मैं कहना चाहता हूँ, we must experience the love of God. आप परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करनी चाहिए। Let's read one more verse. एक और वचन पढ़ेंगे हम। Turn your Bible to 1 Corinthians chapter 13. पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय में देखेंगे। It's a very famous verse on the love. तो ये एक बड़ा प्रसिद्ध जो है वचन है प्रेम के ऊपर। The last verse. सबसे आखिरी वर्ड। The whole chapter is about the love. देखिए ये पूरा जो भाग है ये पूरा प्रेम के ऊपर ही है। The whole chapter is about the love. ये पूरा जो चैप्टर है ये प्रेम के ऊपर ही See, है। this is for written for Corinthians. देखो कुरिन्थियों लोगों के लिए लिखा गया था First, ये। they were very carnal वो people. पूरी जो है दुनिया की चीजों के ऊपर थे ये They were लोग, very worldly. और ये पूरा संसारिक तरीके से जी रहे थे। And suddenly they come into another extreme where they started to operate in the gift. और ऐसा हुआ अचानक वो लोग ऐसे बदल गए और वरदानों के ऊपर वो कार्य करने लगे। Have you seen some people like that? क्या ऐसे लोगों को आप देखे क्या? Sometimes they will be very worst worldly kind of person. कभी कभी जो है बड़े ही संसारिक और बहुत बेकार लोग रहते The हैं। moment they become a Christian, they want to change the whole world immediately. तो जैसे वो मसीह हो जाते हैं तो तुरंत जो है पूरे संसार को बदलने के लिए वो उतर जाते हैं। They, without understanding anything, they'll become very zealous. और सोच समझ के बिना वो जो है परमेश्वर के लिए बड़ी चाहत शिद्दत के साथ उतर जाते हैं। Such kind of people sometimes tell me, और ऐसे किस्म के लोग कभी कभी मुझसे आके कहते tell हैं, your translator to cover the head. आपके ट्रांसलेटर से क्या आप कहे कि आपके सर को यानी कि ट्रांसलेटर के सर को ढक के प्रचार करें, ट्रांसलेट I करें। don't think that is important. That's why I'm not telling. देखो मेरे लिए मैंने सोचता हूँ कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं नहीं कहता हूँ। You understand? आपको समझ में आ It रहा is है? very easy if I tell every sisters cover your head, everybody can cover. देखो ये बहुत आसान है, हर एक बहन से मैं कहूंगा कि बहन अपने सर को ढाके तो वो लोग ढाक See, देंगे। previously we used to tell everyone switch off your cell phones. देखो पहले मैं कहता था कि सब अपने सेल फोन को जो है ऑफ करके Now we रखें। are telling you to wear mask. अभी हम आपसे कह रहे हैं कि आपके मास्क को पहने। And how long it will take for me to cover your head? तो मुझे कितना टाइम लगेगा आपसे ये कहने के लिए आपके सर को ढक कर रखे? They will put, और ऐसे उठाएंगे and it डालेंगे, will fall down. वो नीचे गिरेगा, Again they will put. वो वापस डालेंगे। My God, in the testimony time, that is a distraction और sometimes. कभी कभी ऐसा होता है जब गवाही देते हैं तो मन भटकता रहता है। அந்த சாட்சி சொல்லும்போது அது 10 முறை இழுத்து விட்டு இழுத்து விட்டு இழுத்து விட்டு वो जब गवाही देते हैं तो 10 बार गिरता है डालते हैं, वो ही करते रहते हैं। coming to church is covering your head, it's very easy. देखो चर्च आने के बाद में अपने सर को ढकना आसान है, But submitting to your father, submitting to your husband is very difficult. लेकिन पिता के आगे पति के आगे झुकना मुश्किल है। சர்ச்சில் வந்து முக்காடு போட்டுக்க வேண்டியது, चर्च में आएंगे और जो है सर में पल्लू डाल लेंगे வீட்ல போய் ஹஸ்பண்டா போயான்னு வேண்டியது. और घर में जाएंगे जाबे करके बोलेंगे उसको, पति को। What is the use? क्या फायदा हुआ? It is to show that you are under someone. तो ये दिखाने के लिए होता है पल्लू, जो आप किसी के अधीन होकर के ये दिखाता है। Some people say it is written in the Bible, brother, to cover the head. कुछ लोग कहते हैं बाइबल में तो लिखा है ना भाई कि आपके सरों को ढक कर रखें। So one time I replied one person in the तो Facebook. फेसबुक में मैंने उसका जवाब दिया, It is also written, if your eye is hinder, you pluck it out.
और मैंने उसको ये जवाब दिया, अगर आपकी आंखें आपको तकलीफ दे रही तो आपकी आंखों को निकाल दो करके लिखा गया है ना भाई। तो 99% people are filled with lust nonsense. Nobody is plucking out. देखो 99% लोग जो है पूरी जो है अभिलाषाओं से भरा है, क्यों फिर अपनी आंखों को निकाल नहीं लेते? Bible irka illaya? It is there in the Bible. बाइबल में लिखा है ना, बाइबल में है ना। If your eyes offend you, pluck it out. अगर आपकी आंखें तकलीफ दे रहा है तो उसे निकाल दो। If your hand is offending you, cut it. अगर आपके हाथ तकलीफ दे रहा है उसे काट दो। But till today, I have not seen anyone. I don't think they were able to see that verse. तो अभी तक तो कोई ऐसा नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो वचन को अभी तक कोई लोग देखे नहीं। So sometimes they will be very worldly, कभी-कभी जो है बड़े संसारिक हो जाते हैं, and then suddenly they become very holy. फिर उसके बाद में बड़ा ही पवित्र भी हो जाते हैं। You don't need to be worldly. देखो, आपको संसारिक लोगों की तरह होने की जरूरत नहीं है। You don't need to be act like you're so holy. और आपको इतना नाटक करने की भी जरूरत नहीं, आप बड़े ही पवित्र हो जैसे। Most of the people, they love to watch cinema. देखो, बहुत सारे लोग जो है पिक्चर देखने के लिए उन्हें अच्छा लगता They है, will watch secretly. और जो है जो रहस्यमंद टीवी देखेंगे। If pastor or believer come, immediately off that और TV. जैसे पास्टर या कोई विश्वासी आ जाएगा तुरंत अपने टीवी को ऑफ कर देंगे। Immediately change, God channel. और उसके बाद में जैसे वो लोग आएंगे तो गॉड चैनल की ओर वो घुमा देते हैं। But inside they love all those things. लेकिन अंदर ही अंदर वो सारी बातों को वो प्रेम करते हैं। But they act like, they don't like all those things. लेकिन इतना नाटक उन्हें दिखाते हैं कि जैसे कि वो सारे वो चीजें उनको पसंद ही नहीं है। Don't go this side. आप इस झोर में भी ना जाए Don't go this side. और इस झोर में भी ना जाए। Stay in love. That's what Bible tells us. सिर्फ प्रेम में अटके रहो, यही बाइबल कहता है। You should be the person of full of love. और ऐसे इंसान आपको होना है, आप प्रेम से भरे हुए इंसान रहना है आपको। Bible tells us even if you have mountain moving faith, बाइबल ये कहता है if you आप don't have love, it is waste. अगर आपके पास जो है पहाड़ को हिलाने का भी विश्वास हो लेकिन आपके अंदर प्रेम ना हो तो Waste. वेस्ट है। You understand? आपको समझ में आ रहा So in the है? last verse, इसीलिए आखिरी वर्ड जो है, so Paul is talking about three things. पौलुस जो है 3 बातों के बारे में कह रहे हैं। Okay, verse 13. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में 13 नंबर का वचन। And now abideth faith, hope, love, and these three, but the greatest of this is love. पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थानीय है, पर इनमें सबसे बड़ा है प्रेम। 3 things, very powerful. 3 बातें बड़ा ही सामर्थ्यशाली। Faith, विश्वास, hope, आशा, but the greatest is love. लेकिन सबसे महान है वो है प्रेम। You understand? आपको समझ में आ रहा है? The greatest is love. सबसे महान है वो प्रेम है। If you become a person of love, there are many issues will be solved. देखो, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जाएंगे जो प्रेम से भरे हो तो सारे परेशानी जो है उसका हल मिल जाएगा। The greatest is love. सबसे महान है वो है प्रेम। Hallelujah. हालेलुया। And God is love. और परमेश्वर प्रेम है। God is not also love. परमेश्वर प्रेम भी है नहीं। Sometimes people think like this. देखो, कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं, Only one side if you should preach, no pastor, that is not that much good. देखो परमेश्वर आप एक झोर में अगर आप प्रचार करते रहेंगे ना तो वो सही नहीं होगा। That is love is only one side of the coin. देखो, कॉइन का सिक्के का एक साइड है। You understand? आपको समझ में आ रहा है? So they say that there is another side. लेकिन दूसरा साइड भी एक है। I want to tell you, नहीं, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, whichever side you see, जो कोई भी और से अगर आप देखोगे तो भी God is love. परमेश्वर प्रेम है। I know Bible, मैं जानता हूँ बाइबल को, and for many years I've dedicated myself to study. और बहुत सालों से जो है मैं अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ पढ़ने के लिए। I am not trying to balance love. और दोनों प्रेम, ये जो प्रेम है उसे मैं बैलेंस करने की कोशिश में नहीं हूँ। I am here to preach the unadulterated love of God. मैं परमेश्वर को वो पवित्र शुद्ध प्रेम को कहने के लिए हूँ। Only God is love. सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर प्रेम है। Love is enough to transform our heart. देखो, हमारे हृदय को बदलने के लिए प्रेम काफी है। You understand? आपको समझ में आ रहा है? People only will change when they experience the love of God. देखो, लोग जो है परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करेंगे तब वो लोग बदल जाएंगे तो ही। Let's read one more verse. आइए एक वचन और पढ़ेंगे। John chapter 3. यूहन्ना का किताब 3 अध्याय। People think this is a Sunday class verse. तो लोग ये सोचते रहेंगे ये तो संडे क्लास का वचन है। But you know what? As a pastor, it is very important for us to understand. लेकिन मैं बताना चाहता हूँ पास्टर होने के नाते ये बात समझना बहुत जरूरी है।
John chapter 3 verse 16. यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 16 नंबर का वचन। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। Why he gave his Son? क्यों उन्होंने अपने बेटे को दे दिया? Because he was angry with humanity? क्या वो जो है लोगों से बहुत गुस्से में थे? No, God was in love. That's why he gave his only begotten Son. नहीं, परमेश्वर प्रेम से भरे हुए थे, इसीलिए उन्होंने एक लौता पुत्र को ही दे दिया। People think that God was angry before Jesus Christ came into this world with human beings. ये लोग सोचते हैं कि परमेश्वर जो है बहुत क्रोधित थे ये संसार में आने से पहले, क्योंकि मनुष्य के ऊपर बहुत नाराज थे वो। இயேசு இந்த உலகத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி பிதா வந்து மனுஷன் மேல ரொம்ப கோபமா இருந்தாருன்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க. और इस संसार में यीशु आने से पहले पिता जो है मनुष्य के ऊपर बहुत क्रोधित थे करके लोग कहते हैं, They think. लोग सोचते हैं। But I want to tell you, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपसे, God was not angry, but he was in love. लेकिन परमेश्वर क्रोधित नहीं थे बल्कि वो प्रेम में थे। Before Jesus was born, यीशु पैदा होने से पहले angels brought a good news. फरिश्ते जो है शुभ संदेश को लेकर आए। You know what he said? पता है उन्होंने क्या कहा? Peace on earth and goodwill towards men. जो है पृथ्वी पर शांति होने दो और मनुष्य के प्रति जो है भलाई होने दो। See, I like that verse in Tamil so much. देखो ये तमिल में जो वचन होता है ये बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है। பூமியிலே சமாதானமும் देखो ये संसार में भूमि में समाधान होने दो, மனுஷர் மேல் பிரியமும். और मनुष्य के ऊपर प्रिय। Hallelujah. हालेलुया। பூமியிலே சமாதானமும் மனுஷர் மேல் பிரியமும். और इस भूमि में समाधान और मनुष्य के ऊपर प्रिय। Peace on earth and goodwill towards men. इस भूमि में समाधान और इस संसार में जो है प्रिय मनुष्य के ऊपर प्रिय। Every one of you in this world is very important. देखो इस संसार में हर एक लोग महत्वपूर्ण You are है। important to God. परमेश्वर के लिए आप इम्पोर्टेंट हो। He so loved the world, he gave his only देखो begotten वो Son. इतना इस संसार से प्रेम किए, वो एक लौता अपने पुत्र को उन्होंने दे दिए। You see, he is not giving things. देखो वो चीज नहीं दे रहे थे। Giving things is easy. देखो चीजें देना आसान है, But he gave his only begotten Son. लेकिन उन्होंने अपने केवल एक लौते पुत्र को ही दे दिए। If you have 5 children also, you will not give one also. देखो अगर आपके पास 5 बच्चे हैं, 5 में से एक बच्चों को भी आप किसी को नहीं दोगे। Some of you seen in Facebook, Ching Chong third daughter, often I put her photo or videos. कुछ लोगों ने देखा होगा फेसबुक पे शिंगचोंग ब्रदर की जो तीसरी बेटी है उसे मैं लेकर फोटो खींच के मैं फेसबुक में डालते रहता हूँ। So she's a third daughter. वो तीसरी बेटी है उनकी। Very cute. वो बहुत खूबसूरत है। So I often ask Ching Chong, तो मैं हमेशा शिंगचोंग को पूछते रहता हूँ, if you really love me, give me your daughter. मैं उसे कहता हूँ अगर सच में तुम मुझसे प्रेम करते तो अपनी बेटी को तुम मुझे दे दो। Give it to me, I will take care. तुम मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा। I know nobody will give. हाँ मैं जानता हूँ कोई नहीं देगा। I know I will not give my daughter. मुझे पता है कि मैं भी अपनी बेटी को नहीं दूंगा, But I was simply asking him. लेकिन फिर भी ऐसे ही हम पूछ रहे थे। He'll only laugh. वो बस हंसते रहते। I used to tell him, don't laugh and just change it. I'm seriously asking. देखो मैं फिर उसे कहता हूँ, देखो हंसो मत, मैं गंभीरता से मैं पूछ रहा हूँ कि बेटी को दे दो मुझे। But he will not give, I know. मैं जानता हूँ कि वो नहीं देंगे। Nobody will give. कोई भी नहीं देंगे। Even if you have 5 children, 10 children, you will not give. अगर आपके 5 बच्चे हो या 10 बच्चे हो तो भी आप नहीं देंगे, We love our children. क्योंकि हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। But God gave his only begotten Son for us. लेकिन परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिए हैं। There is no greater gift he can give for you. और परमेश्वर की ओर से ऐसा कोई महान चीज नहीं दे पाएंगे परमेश्वर यीशु मसीह के अलावा। He gave you the greatest gift. परमेश्वर ने उनके महान तोहफे को आपके लिए दे दिए। He has only one son. उनके पास केवल एक पुत्र He थे। gave his only begotten son. उन्होंने उनके एक लौते प्रिय पुत्र को दे दिए। Hallelujah. हालेलुया। He gave you the greatest gift in our life. आपके जीवन में सबसे महान तोहफा आपके लिए वो दे चुके हैं। So with this I will close. तो यहाँ से मैं समाप्त करूंगा। Why he gave? क्यों दिए? Why Jesus was born on this earth? क्यों यीशु इस संसार में पैदा हुए? So that we can celebrate Christmas, ताकि हम जो इस क्रिसमस का जश्न उठा सके have cakes and biryanis. और केक्स और बिरयानी खा सके। Why he gave his son?
क्यों यीशु मसीह को जो है इस संसार में दिए? He is in so much of love with you. क्योंकि वो आपसे इतना प्रेम करते And थे। not only that, उतना ही नहीं, God has decided He is not going to live without you. और परमेश्वर ने डिसाइड किया, निर्णय ले लिया कि आपके बिना वो जी नहीं सकते, He wants to live with you. और वो परमेश्वर जो है आपके साथ जीना चाहते हैं। You understand? आपको समझ में आ रहा He है? born in this world. आप इस संसार में जन्म लिए, And they have to name Him Emmanuel. और वो जन्म लेने के बाद में उनका नाम रखना होगा इम्मानुएल। Emmanuel means God is with us. इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। And while He was on this earth, और इस संसार में जब थे, He was 100% God और वो परिपूर्ण 100% परमेश्वर थे, and 100% human. और 100% मनुष्य भी थे। That's a mystical union. That's a mystery. और वो एक रहस्य है। You understand? आपको समझ में आ रहा He है? was fully human वो पूरी तरह से जो है मनुष्य थे, and He was fully God. और वो परमेश्वर भी थे। When Jesus ascended, और जब यीशु जब गए, He did not ascended as a spirit. और वो एक आत्मा के जैसे नहीं गया, गायब नहीं हुए। You understand? आपको समझ में आ रहा है? He did not ascended as a spirit. एक आत्मा की तरह वो नहीं गए यहाँ He से, ascended as a man वो यहाँ से मनुष्य के रूप में ही गए ऊपर। with flesh and bones. वो जो है फ्लैश के साथ में और हड्डियों के साथ में गए। One person among Trinity till today he is in human form. देखो ये जो त्रिएक परिवार के जो एक इंसान है वो मनुष्य का रूप लेके आए। He still today he वो is in अभी human भी form. अभी இப்போ भी ஒரு மனுஷனா मनुष्य இருக்காரு. के वो अभी भी मनुष्य के रूप लेकर वो यहाँ पर है। You understand? आपको समझ में आ रहा है? Father, Son and the Holy Spirit. The Son is in still now in the human form. पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तो उनका जो बेटा है वो है अभी तक शारीरिक इस संसार में है। He came into this world इस संसार में वो आए to reach us, वो हमें पाने के लिए, to be with us, हमारे साथ रहने के to लिए, become like us, और हमारे जैसा बनने के so लिए, that we will become like Him. ताकि हम उनके जैसे बन पाए। Hallelujah. हालेलुया। God and man coming together. देखो परमेश्वर और मनुष्य एक साथ आ रहे हैं। In divinity, humanity is grafted. एक जो है दिव्य और एक मनुष्यता जो है उसे कलम किया हुआ। You know grafting? आपको पता है कलम कैसे करते हैं? Sometimes they will take a red rose and pink rose and try to attach. कभी कभी जो है लाल गुलाब और पिंक गुलाब जो है लेते हैं, उस कांडी को तोड़ के उसे जोड़ते हैं, And it is called as grafting. तो उसे कलम कहते हैं। And God has grafted us in divinity. तो परमेश्वर ने हमें जो है उनके दैवीय में जो है हमें कलम किए गए And हैं, Jesus was broken for us. और यीशु हमारे लिए तोड़े And गए, He was grafted. We were grafted in Christ. और हम जो है मसीह के अंदर, वो हमारे अंदर जो है कलम किए गए, So much so, ताकि today, उतना ऐसा हुआ जो आज He is the vine, we are the वो branches. दाखलता है और हम उनकी डालियां हैं। I want to tell you, मैं कहना चाहता हूँ आज if से, any of you think God is somewhere sitting in the heaven, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर कहीं तो स्वर्ग में बैठे हैं। you don't understand about Christmas. देखो आप मसीह क्रिसमस के बारे में समझ नहीं पाए। There is no Upparwala, only Emmanuel. देखो यहाँ पे कोई ऊपर वाला नहीं है, लेकिन केवल और केवल इम्मानुएल है। God with us. परमेश्वर हमारे साथ है। Hallelujah. हालेलुया। He is in love with you so much. आपसे वो इतना प्रेम करते He हैं, become like you. वो हम आपके जैसा बने, He want to be identified with और you आपके साथ पहचाने जाए इसीलिए, so that we can be identified with Him. ताकि हम उनके साथ पहचान करवा जाए इसीलिए। Hallelujah. हालेलुया। What a glorious देखो message. कितना महिमाकारक संदेश है ये। Hallelujah. हालेलुया। Today God is not far away. देखो आज परमेश्वर कहीं दूर नहीं है, He is with you. वो आपके साथ है। Let's all stand up for prayer. आइए हम सब खड़े हो जाए प्रार्थना के लिए। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद पिता, Thank you, Father. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। He is with you. आपके साथ है वो He is with every lonely people. वो हर एक जो अकेलापन महसूस करते हैं वो उस इंसान के साथ He is है। with everyone who are depressed. वो जो कोई भी तनाव से गुजर रहे हैं वो उनके साथ है। God has not forsaken you. देखो आपको परमेश्वर ने कभी छोड़े नहीं। No, you are not focusing on Him. नहीं नहीं, आप उन पे ध्यान नहीं दे पा You are रहे not हो, thinking about Him. आप उनके बारे में सोचने रहे हो। He is Emmanuel. वो इम्मानुएल है, God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है, He cannot live without you. और वो आपके बिना नहीं जी सकते। He loves you so वो much. आपसे इतना
ना प्रेम करते He हैं don't want to live without वो you. आपके बिना जी नहीं My सकते God, I don't know when people are going to understand the love of हे God. परमेश्वर मैं नहीं जानता कब ये लोग जो है परमेश्वर के प्रेम को जान पाएंगे He loves for you is an unconditional देखो love. उनका जो प्रेम है आप बेशर्त प्रेम है वो He is not loving you because you are a Christian. देखो आप मसीह है इस वजह से वो आपसे प्रेम नहीं करते He is not loving you because you are very good. देखो आप बहुत अच्छे हो इसीलिए वो प्रेम नहीं करते आपसे He loves everyone. लेकिन वो हर एक लोग से प्रेम करते He हैं loves everyone unconditionally. वो बेशर्त प्रेम से प्रेम करते हैं हर एक लोगों I को pray that God's love will touch you tonight. आज मैं प्रार्थना करता हूँ आज रात जो है परमेश्वर का प्रेम आपको छू जाए This is one more time for us to experience the love of एक God. बार फिर से जो हमारे पास समय है परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने का Hallelujah. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, we come before you. पिता यीशु